Hello dear students, this is Vidhi Sharma. Welcomes you in my another session of English grammar class, and our today's topic is conjunction. Okay, then today I will tell you about conjunctions and where we use them. So you have to concentrate on this topic. You know there are so many problems that you face. First, where you use commas in conjunctions, and what is the correct position of using conjunctions, either they use in the beginning of the sentence or mid of the sentence. So I will tell you that in what way we can use them in the beginning of the sentence, and in what way we can use them in the mid of the sentence, and where we use commas, that is a punctuation mark, and this is very necessary to use on the correct place with conjunction. Okay, so I will tell you, so you have to concentrate on whatever I am making you understand. So first I will tell you the meaning of conjunction. Okay students, conjunctions is a parts of the speech, and is one of the parts of the speech, and these are joining words. We call them joining words. Okay, why we call them joining words? That joining words are the words that join, and you know conjunctions are the words that join two or more. I'm writing here words that join words, clauses and phrases. Okay, conjunctions are the words that use words. Conjunctions are the words that join words, clauses and phrases. And about clauses and phrases I have told you in my previous videos. So what are clause and phrase? A group of words. Okay, but there is difference between clause and phrase. Clause is a group of words with subject and predicate. Okay, a group of words with subject and verb or predicate. Okay, and but phrase is a group of words without subject and predicate. Okay students, so this is the difference between clauses and phrases, and I told you about it. I have already told you about it in my previous videos, so I have to watch these videos and confirm this topic clear, and after that you will know conjunctions. Okay students, so I hope you will see the previous video having this topic, phrase and clauses. Okay students, so here we will discuss about only conjunctions. Conjunctions are the word that join two words, and clauses and phrases. Okay, in what will they join? So we will know this concept with some examples. Like first, Ria like banana. Okay, and then Ria likes. Ria likes apples. Okay, so these are two sentences. You know, in this subject are same, verbs are same, only these two words are different, apples and bananas. So we will join it Ria
likes banana and apples. Bananas and apples. Okay. So here two words are different. So in this sentence, and is working here like conjunction. And is working here the work of conjunctions, and here the it is working here to join these two words. Okay, join two words. Okay, bananas and apples. Okay, students. So in this, the conjunctions are the words that are used to join two words. Okay, and I'm just going to write another example in which sentence will join two clauses or two phrases. Okay. She studies in the library, or she studies at a cafe. Okay, cafe is coffee shop. She studies in the library, or she studies as a cafe. Okay, so here are she and she is the same, studies and his studies are same in both the sentence, but in the library or at the cafe are different. Okay, so what are these? These are phrases. These are also a group of words but have no sense because there is no subject and no predicate. So that's why these called phrases. If we join these two words, these two phrases, so what we will use? She studies in the library, or at a cafe. Okay, she studies in the library or at a cafe. Okay, students. So in here conjunctions is or, and that is working to join phrase. Okay, students. Here or is working to join two phrases. So in that we can say that conjunctions are the words that used to join two phrases. Okay, and I will write another example in which conjunctions will join two clauses like she likes dogs, her family does not like dogs. Okay, these are two sentences in which everything is different. So here are two clauses. What are these two clauses? With subject and predicate. Okay, with subject and predicate. Okay, both the sentences are, as I told you, clauses are the words. Clauses is a group of words with subject and predicate. So in both the sentence you can see subject and predicate. So these are two clauses. How we can join them? How we can join them? She likes dogs, but her family does not like dogs. Her family does not like. We need not to write dogs again. Okay? But her family does not like. Okay, students?
So in that way, this is the complete definition, as I told you, that conjunctions are the words that used to join, conjunctions are the words that used to join to clauses, to verbs and to phrases. Not only two, but also more than two also. Okay friends, so this is the complete definition, and after this we will know the types of conjunctions. Okay, and first I want to say you that conjunctions can be used in both the sides, in both the places. We can use them in the beginning of the sentence, okay, if you want, and in mid of the sentence. But the position of using them in both the places is different from each other. So we will know about it. First we will know the types, and with that we will know the position of the conjunctions. Okay friends? So there are three types of conjunctions. First, coordinate conjunctions. These are first coordinate conjunctions. Second, subordinate conjunctions. Third, correlative conjunctions. Okay. Third, correlative. Okay, students. As I told you, I told you in my previous videos about that in one place, but I'm just recapturing it here about it. That in what way we use coordinate conjunction, in what way we use subordinate and correlative. Okay, so if there are two, coordinate conjunction always used to join two independent clauses. Okay, students? Two independent clauses always used to join two independent clauses or some words. Words can be anything. Or next, subordinate clause is always used to join one dependent and one independent clause. Okay, and these are correlative sentence that used to join two different words, two different sentences and two different events. Okay students? And these are only, as I told you, used to join two dependent clauses, and this condition is applicable only on clauses, and words can be anything and phrase can be anything. And in the independent clauses, here I told you one dependent and one independent clause, so this condition is also applicable on clauses. And but phrases and words have no dependent and independent types. Okay, so that can be anything. Okay students, so this is about the types of conjunctions, and we will discuss them one by one. Okay students, so first we will discuss about coordinate conjunctions.
First, we will discuss about coordinate conjunctions. Coordinate conjunctions are the conjunctions that used to join two words and two independent clauses and phrases. Okay? Used to join two independent clauses words and phrases. Okay? So, what are these? What are these independent clauses and phrases and clause? So, how we can join them? Okay? So, here we will join in that way. One thought plus. Here we use coordinate conjunctions. And next, second thought. पहले हम क्या यूज करेंगे वन थॉट यानी एक थॉट एंड दैट इज कैन बी either words or clauses भी हो सकता है phrases भी हो सकता है and then we will use coordinate conjunction and then after we will use second thought. Okay friends, in that way we can use coordinate conjunction. हम इस तरीके से ये यूज कर सकते हैं coordinate conjunctions को और coordinate conjunctions होते हैं you know what are these coordinate conjunctions? For and nor but or yet so. Okay, ये coordinate conjunctions होते हैं. Okay friends, for means क्या होता है sleep. I'm just writing here इसलिए and means or. For किस लिए यूज किया जाता है इसलिए के लिए and किसके लिए यूज किया जाता है और means अतिरिक्त जानकारी additional information. एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है. ओके, एंड नॉर किसके लिए यूज किया जाता है दोनों में से कोई एक. नॉर इज यूज फॉर चूज वन. ओके, दोनों में से कोई नहीं. इट मीन्स नॉर दोनों में से कोई नहीं. एंड बट किसके लिए यूज किया जाता है अपोजिट कंडीशंस के लिए. अपोजिट कंडीशन विपरीत परिस्थितियां जहां एक सेंटेंस में कुछ और हो एंड देन उसके अगेंस्ट सेकंड में हो उसका कंट्रास्ट हो. और सेकंड और कहाँ यूज किया जाता है फॉर चूज वन. टू चूज वन दोनों में से एक. दोनों में से एक. ओके फ्रेंड्स, एंड यट भी अपोजिट कंडीशन के लिए यूज किया जाता है. विपरीत परिस्थितियों के लिए. एंड सो किसके लिए यूज किया जाता है रिजल्ट बनाने के लिए. परिणाम स्वरूप जिसका मतलब होता है परिणाम स्वरूप. ओके, सो एज आई टोल्ड यू के कंजंक्शंस होते क्या है. कंजंक्शंस वे वर्ड्स होते हैं जो क्लॉजेस वर्ड्स और फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं. ओके, सो ये यहाँ पर शो हो रहा है यानी ये वर्ड्स है ना फॉर
and, not, but, or, yet and so. ये वर्ड्स हमारे यूज होंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस में चीजों को जोड़ने के लिए. व्हाट आर दीज थिंग्स? वो क्लॉज भी हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं और फ्रेजेस भी हो सकते हैं. बट अगर क्लॉज हुए तो वो कौन से होंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज. ओके, और हम जोड़ेंगे कैसे? पहले वन थॉट एंड देन सेकंड. कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस यूज करेंगे, इट मींस इनमें से कोई, एंड देन सेकंड थॉट. ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इसे जोड़ेंगे. क्यों? यही होती है कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस. लेकिन अब इनको याद कैसे रखा जाए, तो हम इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हम इन्हें याद कर सकें. F A N B O Y S. It's very बहुत अच्छा सा वर्ड बन गया ये तो, फैन बॉयज. ओके, तो आपको याद रहेंगे फैन बॉयज आर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. आपको याद रहेंगे ना. इट्स वेरी इजी टू इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर ऑल दैट. ओके, याद रखने के लिए बहुत अच्छी चीज है ना. इस तरीके से आप अच्छे से याद रख सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल नो वन बाय वन द यूज ऑफ दीज ऑल. हम इनके एक एक करके सभी के यूज देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? और हैव यू अंडरस्टूड एनीथिंग फ्रॉम दैट? जो भी मैंने आपको समझाया इसमें से कुछ भी चीज आपको ऐसा तो नहीं जो नहीं आई हो? इट मींस आपको आया कंजंक्शंस होता क्या है. ओके, फर्स्ट आई टोल्ड यू कंजंक्शंस होते क्या है. कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है. और कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स एंड नॉट ओनली टू और मोर देन टू वर्ड्स. ओके, दो या दो से अधिक वर्ड्स एंड क्लॉजेस एंड क्लॉजेस एंड फ्रेजेस को जोड़ते हैं. ओके, अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसके टाइप्स हमने कर देखे. कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शंस. ओके, और जिसमें हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को देखा जिसमें टू इंडिपेंडेंट क्लॉज हम जोड़ सकते हैं और वर्ड्स एंड फ्रेजेस तो कोई भी हो सकते हैं. ओके, एंड दीज आर सम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस. और हम इनको शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है फैन बॉयज. So you can easily remember all that. You can easily identify by knowing only that short form of that, fan boys. Okay, okay students. So should we start coordinate conjunctions? The use of coordinate conjunctions. हम जो fan boys है ना उसके एक एक करके सारे एग्जाम्पल से हम सबको समझेंगे. Okay. बट उससे पहले हम थोड़े से रूल्स जान लेते हैं. एग्जाम्पल से पहले हम थोड़े से रूल्स जान लेते हैं. ओके, कि इन व्हाट वे वी कैन यूज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कहाँ हम कॉमा यूज करेंगे. तो हम यहाँ रूल नंबर 1 लिख रहे हैं. रूल नंबर 1, व्हाट इज रूल नंबर 1? कि अगर आप कोई टू वर्ड्स ज्वाइन कर रहे हो, टू फ्रेजेस ज्वाइन कर रहे हो, इफ यू आर ज्वाइनिंग टू वर्ड्स और टू फ्रेजेस, ओके, रिमेंबर दैट अगर आप टू वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे हो एंड फ्रेजेस को ज्वाइन कर रहे हो तो नो कॉमा, कोई कॉमा यूज नहीं होगा. ओके, अगर आप टू वर्ड्स एंड टू फ्रेजेस को ज्वाइन कर रहे हो तो कोई भी कॉमा यूज नहीं होगा. ओके फ्रेंड्स, एंड देन अगर आप दो से ज्यादा, आई एम जस्ट राइटिंग हियर टू एंड टू, क्योंकि मैं टू की बात कर रही हूँ. ओके, बट मोर देन टू, दो से ज्यादा यूज कर रहे हो तो देन कैसे यूज करोगे? कॉमा यूज करोगे. ओके, दो से ज्यादा 3 और 4 की बात कर रही हूं मैं, तो वन आइटम. ओके, कॉमा, सेकेंड आइटम, कॉमा, थर्ड आइटम. ओके, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और फिर एंड लगा के फोर्थ आइटम. फर्स्ट आइटम, सेकेंड आइटम, थर्ड आइटम, फिर उसके बाद भी मैं कॉमा लगाना है, उसके बाद कंजंक्शन यूज करना है.
Okay, friends, like that I'm writing one example here. Please bring banana, comma, apple, comma, mangoes, bananas लिखती हूँ मैं, bananas, apples, mangoes, okay, and grapes. Okay, look यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, प्लीज ब्रिंग बनानास. ये फर्स्ट आइटम हो गया. And then second item and third, and here कॉमा लगाया मैंने, यानी इनके बीच में भी कॉमा है और यहाँ पर फिर ये कंजंक्शन. ओके, एंड दिस इज फोर आइटम. ओके फ्रेंड्स, इन दैट वे वी कैन यूज. और इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका जहाँ टू वर्ड्स और फ्रेजेस में कोई भी कॉमा यूज नहीं होता. जब हम दो वर्ड्स एंड दो फ्रेज यूज कर रहे हैं तो कोई भी कॉमा नहीं. जैसे रिया एंड सीमा आर फ्रेंड्स. ओके, यहाँ मैंने टू वर्ड्स यूज किए, रिया एंड सीमा. तो यू आर ऑब्जर्विंग कि यहाँ मैंने कोई भी कॉमा यूज नहीं किया. ये क्या है, कंजंक्शन, एंड दिस इज द फर्स्ट आइटम और दिस इज सेकंड. ये फर्स्ट है नाउन और प्रोनाउन जो भी होते हैं, तो यहाँ ये नाउन यूज हुआ है, फर्स्ट नाउन एंड देन सेकंड, और यहाँ मैंने कंजंक्शन यूज किया है, नो कॉमा. ओके, एज आई टोल्ड यू यहाँ कोई कॉमा यूज नहीं होगा. Okay students, so this is the rule number 1 of using coordinate conjunction, and this is punctuation marks. ये मैंने पंक्चुएशन मार्क्स यहाँ पर डिस्कस किए कि पंक्चुएशन मार्क, कॉमा आप कहाँ यूज करेंगे और कहाँ नहीं यूज करेंगे. सो आई होप यू अंडरस्टूड. ओके फ्रेंड्स, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड रूल. एक और रूल है इसमें सेकंड. So I am discussing about it here. What is that? आपने वर्ड्स एंड फ्रेजेस के बारे में तो देख लिया, बट अब हम क्लॉज के बारे में भी देखते हैं ना. क्लॉज के बारे में सेकंड रूल सेकंड. ओके, सो व्हाट इज दैट? यहाँ पर हम पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज करेंगे. ओके फ्रेंड्स, देन प्लस क्या यूज करेंगे, कॉमा. क्या लगाएंगे, कॉमा, एंड प्लस यहाँ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. ओके, फर्स्ट हमने क्या यूज किया, इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसके बाद कॉमा लगाया. इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर हम यूज कर रहे हैं, दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल ऑन क्लॉजेस. वर्ड्स एंड फ्रेजेस के बारे में मैं रूल फर्स्ट में बता चुकी हूँ, और ये केवल ये रूल सेकंड में मैं क्लॉजेस के बारे में बता रही हूँ. इन विच इफ देयर आर टू क्लॉजेस, अगर हम दो क्लॉज को यूज कर रहे हैं और दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज, एज आई टोल्ड यू के कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में तो इंडिपेंडेंट क्लॉज ही यूज होते हैं ना. तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज हम यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड देन कॉमा यूज करेंगे, एंड देन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जो भी हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो हम यूज करेंगे, एंड देन सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज करेंगे. दिस इज हाउ. सो आई डोंट नो, we will discuss about through example. We can go to market, comma, or we can study
at home. Okay, we can go to market or we can study at home. यहाँ देखिए फर्स्ट ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, and here conjunction, and here second independent clause. Okay, this is first and this is second. Okay friends, so in that way we will use coordinate conjunctions, and I told you about two rules, and while using them आप याद रखेंगे कि हमें कहाँ कॉमा यूज करना और कहाँ नहीं. Okay, as I told you first, जहाँ words and clause, words and phrases को जोड़ रहे हैं, if you are joining words and phrases, अगर दो वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं तो कॉमा यूज नहीं करना है, दो से ज्यादा है तो कॉमा यूज करना है. एंड इन द कंडीशन ऑफ क्लॉजेस, क्लॉज की कंडीशन में क्लॉज के साथ आपको कॉमा यूज करना है. ओके, इन दैट आई मेड यू अंडरस्टैंड बाय गिविंग सम एग्जांपल्स आल्सो, यू नो वन एग्जांपल. ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे, और हम अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से हैं. यू नो जैसे मैंने फैन बॉयज बताया ना, फैन बॉयज के हम एक एक एग्जांपल से उन्हें समझते हैं. ओके स्टूडेंट्स, look students, these are some examples related to coordinate conjunctions, fan boys. Okay, so for F, for के लिए यहाँ क्या है, she is overweight for she eats too many pizzas and chop and cakes. तो यहाँ मैंने and यूज किया. ओके, आर यू कैचिंग? and यूज किया है, and is a coordinate conjunctions और these are joining two words, दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ कोई कॉमा यूज नहीं किया. ओके, एंड लुक and. ओके, टू एंड टू मेक फोर, यहाँ पर भी and क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस है जो दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, and that's why I didn't use any comma here. Okay, and next nor, here he does not want to eat pizza. ये क्या है, he does not want to eat pizza, ये clause है. Okay, and nor does he eat biscuit, यहाँ पर भी एक clause है. Okay, and this nor क्या है यहाँ पर, coordinate conjunction, और जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहा है उससे पहले यू नो फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज हमने यहाँ यूज किया, एंड देन हमने क्या यूज किया, कॉमा, उसके बाद कंजंक्शंस, एंड दिस इज सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज एज आई टोल्ड यू इन रूल सेकंड. मैंने बताया ना रूल सेकंड में, उसी तरीके से. एंड नेक्स्ट है आपका बट, आर यू गेटिंग बट, यहाँ आई लाइक टी, मैंने यहाँ बट यूज किया है जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है यू नो क्या यूज कर रहा है, क्या ज्वाइन कर रहा है, ये टू क्लॉजेस को. आई लाइक इट, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, माय सिस्टर लाइक कॉफी, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बट यहाँ ज्वाइनिंग का काम कर रहा है, दिस इज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसलिए मैंने यहाँ कॉमा भी यूज किया. ओके, क्योंकि ये यहाँ क्लॉजेस को जोड़ रहा है, एज आई टोल्ड यू कि क्लॉज जोड़ते हैं तब वहां कॉमा यूज होता है. और यहाँ और भी, वी कैन गो टू पार्क और वी कैन स्टे एट होम, और यूज हो रहा है यहाँ कॉमा. यट, क्योंकि यहाँ पर ये दो क्लॉजेस हैं. एंड नेक्स्ट यट, शी ran fast in race. यट भी यहाँ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, तो मैंने यहाँ कॉमा यूज किया है. शी इज वेरी हेल्पफुल, सो, तो मैं यहाँ सो यूज कर रही हूँ, सो इज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और उससे पहले मैंने यहाँ कॉमा यूज किया. आर यू गेटिंग? एंड इन दिस वे वी कैन यूज कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, एंड दीज आर फैन बॉयज. आई मेड यू अंडरस्टैंड थ्रू एग्जांपल्स. यहाँ मैंने जो एग्जांपल्स दिए आप उनको याद रखेंगे, और आई होप आप उनका सही से यूज करेंगे. ओके, देन वी विल स्टार्ट सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस. So students, after coordinate conjunction, after coordinating conjunctions, we will know about subordinating conjunctions. What are subordinating conjunctions?
that join clauses to another on which it depends for full meaning is called subordinate conjunctions. क्या होते हैं जो clauses को जोड़ते हैं, और कौन से वाले clause जो डिपेंडेंट clause होते हैं. ओके, किससे जोड़ते हैं? इंडिपेंडेंट clause. ओके, इन दैट जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, जो अपने फुल मीनिंग के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड होते हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं. ओके, सो इन व्हाट वे दीज आर जॉइनिंग? यहाँ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है. ओके, फर्स्ट डिपेंडेंट क्लॉज होता है एंड एक यानी वन डिपेंडेंट क्लॉज होता है और वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. ओके, सो क्या है इसका? अगर यहाँ हम कॉमा जब यूज करेंगे तो वो किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे? अगर आप फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, और हम पहले क्या यूज करेंगे और कॉमा कहाँ यूज करेंगे ये तो हम बाद में जानेंगे, बट हम पहले जानते हैं कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं ना, वो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग. ओके, उनको डिवाइड किया जाता है, इनको क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग. उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही उसमें कंजंक्शंस यूज होते हैं. लाइक इनकी क्या कितने क्लासिफिकेशन है? टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंपैरिजन के अकॉर्डिंग, कंट्रास्ट के अकॉर्डिंग, रिजल्ट के अकॉर्डिंग, पर्पस के अकॉर्डिंग एंड मैनर के अकॉर्डिंग. ओके, जिसमें टाइम बताया जाए वो टाइम के अकॉर्डिंग, जो कंजंक्शंस टाइम के लिए यूज किए जा रहे हैं और टाइम को यहाँ दिखा रहे हैं, तो देन वो क्या होते हैं? टाइम के अकॉर्डिंग जो कंजंक्शंस होते हैं वो, लाइक आफ्टर, बिफोर, एज सून एज फार एज, लाइक दैट. ओके, वी विल डिस्कस अबाउट इट, बट यहाँ हम पहले उसकी क्लासिफिकेशन जान लेते हैं. हम उसको एक एक करके यहाँ डिस्कस भी करेंगे. एंड देन प्लेस के अकॉर्डिंग, जो प्लेस को बताते हैं, प्लेस के बारे में बताते हैं, तो वहाँ प्लेस के अकॉर्डिंग वहाँ डिस्कस किए जाते हैं. एंड रीजन को बताते हैं, वहाँ रीजन के अकॉर्डिंग. कंडीशन को भी शो करते हैं. ओके, कुछ कंपैरिजन भी बताते हैं, कंपेयर भी करते हैं नाउन को. एंड कंट्रास्ट यानी विपरीत जो परिस्थितियां हैं उनको शो करते हैं, तो वो कंट्रास्ट हो गए. एंड जो रिजल्ट बताते हैं और जो पर्पस फॉर डूइंग एनी वर्क, जो उसका पर्पस बताते हैं. और कुछ होते हैं जो मैनर को एम्फेसिस करते हैं, जो मैनर के बारे में बताते हैं. तो ये है इनके क्लासिफिकेशन. एंड अब उनके हम एक एक करके जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हम यहाँ कॉमा कहाँ यूज करेंगे और कहाँ नहीं यूज करेंगे. ओके, सो लुक स्टूडेंट्स, दिस इज रूल नंबर 1. यहाँ हम कैसे यूज करते हैं कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसको हम पहले यूज करेंगे. सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर हमें यूज करना है, पहले अगर आप डिपेंडेंट क्लॉज यूज कर रहे हैं, यहाँ 2 कंडीशंस हैं. ओके, फर्स्ट रूल 1 में और सेकंड रूल 2 में. ओके, सो हियर अगर हम पहले डिपेंडेंट क्लॉज यूज करें, सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले यूज कर रहे हैं. अगर हमारा जो क्लॉज है ना सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो हमने कहाँ यूज किया? सेंटेंस में, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी सबसे पहले. तो हम जब हम इसे पहले यूज कर रहे हैं तो उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? डिपेंडेंट क्लॉज. ओके, जब हम क्लॉज यूज कर रहे हैं, जब हम सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज कर रहे हैं, क्लॉज नहीं, ओनली सबऑर्डिनेट, नॉट क्लॉज, कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन यूज कर रहे हैं अगर हम पहले, तो उसके बाद हम डिपेंडेंट क्लॉज यूज करेंगे. ओके, सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज से पहले ही यूज होता है. लेकिन यहाँ मैं कॉमा की कंडीशंस बता रही हूँ ना, कॉमा आपको कहाँ यूज करना है. तो अगर आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पहले यूज कर रहे हैं, ओके, उसके बाद क्या यूज करेंगे? डिपेंडेंट क्लॉज, और उसके बाद हमें कॉमा यूज करना है. क्या यूज करना है उसके बाद? कॉमा. पहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज और उसके बाद कॉमा, एंड आफ्टर दैट इंडिपेंडेंट क्लॉज. ये सीक्वेंस होना चाहिए. ओके, तो स्टूडेंट्स हमेशा यहाँ मिस्टेक करते हैं.
वो कॉमा कहाँ यूज करते हैं, वो गलत जगह पे यूज करते हैं, देन उनका सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। और तो मुझे लगता है कि आफ्टर दिस वीडियो और आफ्टर द डिस्कशन अबाउट these conjunctions, subordinate conjunctions and coordinate conjunctions and correlative conjunctions, आप ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। ओके, एंड आई होप सो कि आपको समझ में आ जाएगा और आप ये दोबारा जो मिस्टेक्स आप करते आए हैं वो अब नहीं करेंगे, कि आपको कहाँ कॉमा यूज करना है और कहाँ नहीं। सो हियर आई एम जस्ट टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि अगर आप सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले यूज किया है तो उसके बाद आपको क्या यूज करना है, डिपेंडेंट क्लॉज, और उसके बाद कॉमा यूज करना है, और उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज करना है। ओके, सो दिस इज द सीक्वेंस। आई एम राइटिंग वन एग्जांपल हियर, तो आप उस एग्जांपल से थोड़ा सा समझ लीजिए कि कैसे, हाउ यू विल यूज। लाइक यहाँ देखो, इफ मैंने यूज किया, इफ क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो उसके बाद ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, कैसे है डिपेंडेंट क्लॉज, अगर आप इसे कहेंगे ना, यू डोंट वांट टू गो टू मार्केट, तो ये अपने आप में कंप्लीट है, ये सेंसफुल है, और यह एक सेंस दे रहा है कि अगर आप मार्केट नहीं जाना चाहते हो तो। ओके, यहाँ क्या बता रहा है, अगर आप मार्केट नहीं जाना चाहते हो तो, नहीं जाना चाहते हो, इट मींस यहाँ पर ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। देन हमने यहाँ क्या यूज किया, कॉमा, फिर ये क्या है, इंडिपेंडेंट, यू कैन स्टडी एट होम। ओके, तो यहाँ हमने ये इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज किया। ओके स्टूडेंट्स, यू नो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, यू नो ये कंप्लीट नहीं है। इफ यू डोंट वांट टू गो टू मार्केट, अगर हम ये कहें कि अगर आप मार्केट नहीं जाना चाहते हो तो, अब तो पर बाकी खत्म है। ओके, तो देन ये कंप्लीट नहीं है ना, और ये कंप्लीट है, यू कैन स्टडी एट होम। तो मैंने जैसे कहा कि पहले हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज करना है, और उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज यूज करना है। यू नो सेंसलेस है, इसमें कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है जब तक हम ये वाला सेंटेंस यूज नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया यहाँ, फ्रॉम। ओके, सो दिस इज द सीक्वेंस। और जो सेकंड रूल है वो सेकंड कंडीशन है, जहां अगर हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज बीच में यूज किया है तो आप पहले क्या यूज करेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज, फिर डिपेंडेंट क्लॉज। लाइक हम इसी वाले एग्जांपल को यहाँ लिखते हैं, एक हमने कहा यूज किया है बीच में, तो ये क्या है, यू कैन स्टडी एट होम, कंप्लीट सेंटेंस, इट मींस ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, एंड हियर यू डोंट गो टू मार्केट, तो ये डिपेंडेंट है। ओके, तो यहाँ हमने बीच में यूज किया है। जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट यू नो आपको ये याद रखना है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बाद हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज यूज होता है, और वो चाहे आप फर्स्ट में यूज करो तो डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाएगा, और अगर आपने बीच में यूज किया तो डिपेंडेंट क्लॉज बाद में आ जाएगा। ओके, सो these are two rules as I made you understand, और हम क्लासिफिकेशन करेंगे वन बाय वन। जैसे कि मैंने आपको बताया टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, तो हम वन बाय वन वो सारे क्लासिफिकेशन करेंगे और उनके एग्जांपल्स भी देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लुक स्टूडेंट्स, these are the examples of time relating subordinate clause. Time, okay, after, as soon as long as, before, until, since, until, since, when, and whenever, and why. These are time related subordinate conjunctions, और हम यहाँ इनके मीनिंग्स है, यू नो टाइम दिया है मैंने, यहाँ मीनिंग्स दिए हैं, और यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी दिए। ओके, सो वी विल नो अबाउट देम। आफ्टर मीन्स के बाद, जैसे कि मैंने लिखा है वेंट टू ऑफिस, आफ्टर, यहाँ ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और यहाँ बीच में मैंने सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज किया। ओके, आई वेंट टू ऑफिस, आई फिनिश्ड द वर्क। ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर इस तरीके से यूज करेंगे, एंड एज सून एज मींस जैसे ही, एज सून एज मींस जैसे ही, एज सून एज द टीचर एंटर्ड इन द क्लास, स्टूडेंट्स स्टूड अप। और देखो एज सून एज मैंने पहले यूज किया है, और उसके बाद ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज, एंड हियर मैंने यहाँ कॉमा यूज किया, उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे ही टीचर क्लास में एंटर हो, एंड स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूड अप होते हैं कि नहीं, सो स्टूडेंट्स स्टूड अप यानी स्टैंड होते हो कि नहीं,
ऐसे ही ये सेंटेंस है, as soon as the teacher entered in the class students stood up. Okay, so यहाँ से नेक्स्ट है as long as means जब तक. Okay, so I don't care what you do as long as you don't disturb me. तो मैंने यहाँ as long as यहाँ बीच में यूज किया. And next, before, brush your teeth before you go to bed. Okay, यहाँ before means बाद में. ये कुछ टाइम रिलेटेड जो टाइम के लिए यूज किए जाते हैं, जो टाइम को रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस से रिलेशन जोड़ने के लिए ज्वाइन किया जाता है वहां पर टाइम को. ओके, टाइम के अकॉर्डिंग. लाइक यहाँ पर एग्जांपल है ब्रश योर टीथ बिफोर यू गो टू बेड. ओके, सो मैंने बिफोर यहाँ बीच में यूज किया. नेक्स्ट, टिल एंड अनटिल मींस जब तक और तक. तो लाइक हियर जस्ट वेट अंटिल और टिल आई रिटर्न, हम दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं. वेट यहाँ इंतजार करो, अंटिल आई रिटर्न जब तक मैं ना लौटूं और जब तक मैं लौटूं. ओके, हियर सिंस, यहाँ टिल एंड टिल दोनों थे. उसके बाद सिंस है. सिंस माने जब से. इट इज सो लॉन्ग सिंस आई सॉ देम. सिंस यहाँ मैंने बीच में यूज किया, बहुत टाइम हो गया कि मैंने उन्हें देखा था. तो इसमें जब से मैंने उन्हें नहीं देखा. यू नो, सिंस हियर इट इज सो लॉन्ग और सिंस मैंने यहाँ बीच में यूज किया. उसके बाद ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज. व्हेन मींस यहाँ कब नहीं है, व्हेन मींस यहाँ जब. ओके, जो कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में यूज हुआ है. शी वाज रीडिंग अ बुक. वो क्या कर रही थी, बुक पढ़ रही थी. When I ran to her, जब मैं उसके पास गया, जब मैं उसके पास गया. ओके, नेक्स्ट, whenever मीन्स जब कभी. तो हमने यहाँ पहले यूज किया whenever I hear that song. जब कभी मैं उसका गाना सुनता हूँ, उस सॉन्ग को सुनता हूँ. Thank for her. ओके, मैं क्या करता हूँ, thank for her, उसको धन्यवाद देता हूँ. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ मैंने whenever कहाँ यूज किया, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, और इसलिए मैंने यहाँ पर कॉमा यूज किया. यहाँ कॉमा यूज करें. ओके, नेक्स्ट है while. while मींस जब तक. no one left the cinema while the movie was on. no one left the cinema while the movie was on. किसी ने सिनेमा छोड़ा ही नहीं जब तक कि मूवी चलती थी. ओके, so these are time related subordinate conditions जो टाइम को जोड़ते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग सेंटेंस को जोड़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड आफ्टर दैट वी विल नो प्लेस. प्लेस के बारे में हम जानेंगे. यू नो, प्लेस जो इसका क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है सबऑर्डिनेट क्लॉज का. सो दीज आर अकॉर्डिंग टू प्लेस एंड अकॉर्डिंग टू रीजन. क्या है ये, लाइक फर्स्ट है वेयर एंड वेयरएवर. अकॉर्डिंग टू प्लेस क्या है, वेयर एंड वेयरएवर. वेयर मींस जहां एंड वेयरएवर मींस जहां कहीं भी. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस. आई डोंट नो द प्लेस वेयर यू लिव. मुझे नहीं पता जहां तुम रहते हो. दिस इज इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस एंड हियर डिपेंडेंट क्लॉज. यू नो, यहाँ इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये डिपेंडेंट क्लॉज. ओके, नेहरू was honored wherever he went. नेहरू का स्वागत हर जगह हुआ जहां कहीं भी गए. Here wherever means जहां कहीं. He went, जहां कहीं भी वे गए. Okay, and this is according to the reason. क्या है, since, as, because और in order that. Since means क्योंकि, and as means भी क्योंकि और because means भी क्योंकि. Okay, और in order that जिससे कि. हम यहाँ as को पहले यूज कर रहे हैं. As he was poor. Okay, so हमने यहाँ कॉमा बीच में यूज किया बिकॉज as के बाद ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो कॉमा हमने कहाँ यूज किया है. एंड हियर as he was poor I helped him. और यहाँ यू नो थोड़ा सा उल्टा हो गया. यहाँ since है और यहाँ as है. ओके, तो यहाँ as और यहाँ since. यहाँ as है, as means भी क्योंकि और since means भी क्योंकि. Since we have got a few minutes to wait for the train, let's have a cup of tea. Okay, since मैंने यहाँ पहले यूज किया है. So here
यहाँ पर क्या है, लेट्स दैट सिंस वी हैव गॉट जस्ट 2 minutes टू वेट फॉर द ट्रेन, ओके, यहाँ क्या है कॉमा एंड देन ये क्या है इंडिपेंडेंट क्लॉज, यहाँ पर ये डिपेंडेंट क्लॉज है, सिंस के बाद यूज हुआ है, ट्रेन के आने में कुछ देर है और हमें वेट करना है, तो क्यों ना हम कॉफी, एक कप कॉफी ले वहां पर। एंड हियर बिकॉज मीन्स भी क्योंकि आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वाज इन, ओके, सो हियर मैंने यहाँ बीच में यूज किया, इसलिए कोई कॉमा यूज नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट, इन ऑर्डर दैट मीन्स जिससे कि, डू एक्सरसाइज इन ऑर्डर दैट योर हेल्थ मे इम्प्रूव, आपको क्या करना है, इन ऑर्डर दैट टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करो जिससे कि आपकी हेल्थ इंप्रूव, ओके स्टूडेंट्स, so these are according to place and according to reason, okay, subordinate clause, and after that we will know next. So students, these are related to conditions, these subordinate conjunctions are related to conditions, kya hai, if means yadi, and as I made you understand through examples in the beginning of the subordinate clause, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के अगर आपने इफ का यूज पहले किया है तो कॉमा लगाएंगे, इफ का यूज बाद में किया तो कॉमा नहीं लगाएंगे, ओके, तो यहाँ मैंने पहले किया है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, सो हियर आई यूज्ड इट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड सो आई यूज कॉमा, और उसके बाद मैंने यहाँ डिपेंडेंट क्लॉज और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ओके फ्रेंड्स, एंड आफ्टर दैट प्रोवाइडेड दैट मींस बशर्ते कि, कैसे यूज करेंगे, यू कैन गो आउट टू प्ले आउटसाइड, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते कि, क्योंकि आपको आप बाहर जा सकते, तुम बाहर जा सकते हो खेलने, लेकिन बशर्ते यू फिनिश योर होमवर्क, आपको क्या करना है उसके लिए, अपना होमवर्क पूरा करना, और ये मैंने यहाँ बीच में यूज किया, ओके, इन केस मीन्स यदि, आई विल टेक कैश इन केस वी नीड इट ऑन द फेरी, और यहाँ मैंने ये बीच में यूज किया है, हम ले सकते हैं कैश, ओके, सो इन केस मैंने यहाँ बीच में यूज किया है। नेक्स्ट है इफ ओनली मीन्स केवल अगर, यू कैन सक्सेसफुल ओनली इफ यू स्टडी हार्ड, कब आप सफल हो सकते हो, यदि आप स्टडी हार्ड करोगे, अगर, केवल अगर आप स्टडी हार्ड करोगे, ओके, एंड नेक्स्ट अनलेस का मतलब क्या होता है, इफ और नॉट, यानी इफ और नॉट के, यानी जिस सेंटेंस में आपने इफ यूज किया उसको नेगेटिव है तो आप अनलेस का यूज कर सकते हो, उसकी जगह इफ नॉट का भी यूज कर सकते हैं, मींस जब तक नहीं या यदि नहीं, अनलेस यू आस्क हर यू विल नेवर नो, जब तक तुम उससे पूछोगे नहीं तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा, इट मींस जब तक तुम उससे पूछोगे नहीं, है ना, यदि तुम उससे पूछोगे नहीं, इट मींस यदि भी है यहाँ और नहीं भी, ओके स्टूडेंट्स, सो हियर यू आर यूजिंग अनलेस, और ये बिगनिंग में है इसलिए हमने कॉमा यूज किया, ओके, एंड नेक्स्ट है अज्यूमिंग दैट मींस माना कि, आई होप टू गो टू कॉलेज नेक्स्ट ईयर अज्यूमिंग दैट आई पास माय एग्जाम, हमने ये बीच में यूज किया है, अज्यूमिंग दैट मींस माना कि, ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ कंडीशंस बेस्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज, और हम एग्जांपल्स भी दिए आपको, आई होप यू अंडरस्टूड दैट, और उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस रिलेटेड टू कंपैरिजन, ओके, सो दिस इज these are the uses of comparisons in subordinating clause, and in which whether is given here, okay, whether means दोनों में से कौन सा, so you must, this is the example, you must decide whether you will go by car or by bus, okay, so here whether is given here, and in the mid of the sentence it is given, so that's why here I didn't use comma, okay students. Next, whereas means jabki, Raj is tall, whereas his brother is short, okay, Raj कैसा है, लंबा, जबकि उसका भाई short है, so here I used whereas in the mid of the sentence,
and this is independent clause and this is dependent clause. Okay students, and next is as much as. Okay, as much as means jitna. He can eat as much as you. Okay, वह इतना खा सकता है जितना कि तुम. Okay friends, so this is these sentences are showing comparisons with these words. Okay, okay students, are you getting? Next, then की अपेक्षा, he is stronger than his brother. वह अपने भाई की अपेक्षा ज्यादा मजबूत है. Okay, so than is here in the middle of the sentence and this is independent clause and this is dependent clause. And next is rather than. Rather than means बजाय. I will love to have coffee rather than tea. Okay, rather than tea. So here these words are showing comparison of nouns and pronouns. Okay students, so this is the complete chart of comparison, subordinating conjunctions. Okay, and then we will discuss later, we will discuss other things. Okay, so look students, this is contrast related subordinating clause chart. So these are the words that are related to contrast, that show contrast in the sentence. Contrast means विरोधाभास. Okay, contrast means क्या होता है? विरोधाभास. Okay, जो एक दूसरे से अपोजिट रहते हैं. जो सेंटेंस जैसे कि वह गरीब है फिर भी वो ईमानदार है. सो दीज आर सच टाइप ऑफ सेंटेंस. ये क्या है? अपोजिट है. एक में अच्छी चीज बताई जाएगी एंड सेकेंड में कुछ समथिंग उसके अपोजिट ही बताया जाएगा. सो हियर दो, ऑल्दो एंड इवन दो. दीज आर थ्री, दो, ऑल्दो एंड इवन दो. इन सबका ही मतलब हालांकि होता है. सो वी कैन यूज एनीवन इन एनी प्लेस. किसी भी जगह हम वैसे यूज कर सकते हैं बिकॉज मीनिंग सबका एक ही जैसा है. बट यहाँ कुछ चीजें हैं, यहाँ मैंने कुछ नोट भी लिखे हैं. सो लुक, फर्स्ट ऑल्दो का हम कैसे यूज करेंगे? ऑल्दो आई वाज फीलिंग स्लीपी, यहाँ मैंने ऑल्दो को सबसे पहले यूज किया है, सो आई यूज कॉमा हियर. ओके, ऑल्दो आई वाज फीलिंग स्लीपी आई वेंट टू माय फ्रेंड्स. ओके, मुझे नींद आ रही थी, यद्यपि हालांकि मुझे नींद आ रही थी, मैं अपने फ्रेंड के घर गया, यानी फिर भी मैं अपने फ्रेंड के घर गया. ओके, एंड नेक्स्ट दो इट वाज रेनिंग ही वेंट आउट. हालांकि बरसात हो रही थी फिर भी वो बाहर गया. एंड इवन दो शी परचेज्ड ए स्मॉल हाउस, इवन दो शी हैड अ बिग हाउस. हालांकि उसने एक छोटा घर खरीदा, उसके पास एक बड़ा घर है, फिर भी उसके पास एक बड़ा घर है, फिर भी उसने छोटा घर खरीदा. ओके, सो यहाँ एक नोट डाला है मैंने, इन विच ऑल्दो होता है ना, ऑल्दो ये कैसा होता है? ऑल्दो हमेशा फॉर्मल वे में यूज किया जाता है. ओके, ऑल्दो हमेशा किस वे में यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? फॉर्मल वे में. और जो इवन दो होता है, इवन दो वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एम्फेसिस करने में ऑन द कंट्रास्ट बिटवीन टू क्लॉजेस. अगर दो क्लॉज के बीच में कोई विरोधाभास बताना है ना, तो ये इवन दो बहुत अच्छा काम करता है. इट मीन्स हम कह सकते हैं कि दोनों में लड़वाने का काम है ना, बहुत अच्छे से कर सकता है. ओके, लाइक सम अदर पीपल्स. तो इवन दो सेंटेंस में सबसे अच्छा काम कर सकता है जोड़ डालने के, यानी स्ट्रोंगर एम्फेसिस है. ये क्या है? स्ट्रोंगर एम्फेसिस करता है ऑन द कंट्रास्ट बिटवीन टू क्लॉजेस, और कनेक्ट करता है उनको कंपेयर करते हुए. दो एंड ऑल्दो के कंपैरिजन में अच्छे से कनेक्ट करता है और स्ट्रोंगर एम्फेसिस है. सो इवन दो कब यूज किया जाता है? जब हमें किसी बात पर यानी किसी क्लॉज पर प्रेशर डाल के वहां उसको अपोजिट साइड में दिखाना है. ओके, इट लाइक दैट कि उसके पास एक
छोटा घर उसने खरीदा, शी परचेज ए स्मॉल हाउस, उसने एक छोटा घर खरीदा, हालांकि उसके पास एक बड़ा घर है। ओके, तो यहाँ ये ज्यादा जोर डाल रहा है उस बड़े घर पर और छोटा घर उसने खरीदा है। सो हियर वी कैन से कि ये बहुत अच्छा शो करता है कंट्रास्ट को। ओके ओके स्टूडेंट्स, देन आफ्टर वी विल नो मोर अदर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, these are two charts. This is of result and this is of purpose. Okay, these are two charts, of result and purpose. result में क्या होता है, so and dot dot that. इसमें क्या होता है, so मीन्स क्या है, इतना, that मीन्स क्या है, की, इतना की। ओके, like he is so weak that he cannot walk. ओके स्टूडेंट्स, हम ऐसे भी यूज करते हैं, he is so weak that he cannot walk. ओके, और ये कोरिलेटिव एक कंजंक्शन भी है, इसे हम कोरिलेटिव में भी यूज करते हैं। ओके, मैं उसमें भी बताऊंगी, बट यहाँ आप देखिए, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। ओके, यहाँ रिजल्ट के लिए सो डॉट डॉट दैट, यानी रिजल्ट बता रहा है कि वो इतना कमजोर है, उसका रिजल्ट क्या है कि वो चल नहीं सकता, वो इतना कमजोर है, इट मीन्स रीजन, एंड ये क्या है, रिजल्ट, कि वो चल नहीं सकता। ओके, he is so weak in his study that he cannot get first position, he cannot get good marks. वह इतना कमजोर है स्टडी में कि वो अपनी स्टडी में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता। ओके, एंड लाइक ये भी एक पर्पस है, पर्पस यानी उद्देश्य बताया जाता है, यानी पर्पस बताया जाता है किसी काम को करने का। लाइक देयर आर थ्री वर्ड्स, लेस्ट, सो दैट एंड इन ऑर्डर दैट। लेस्ट मीन्स ऐसा ना हो कि। ओके, इस छोटे से वर्ड्स का इतना मतलब है, ऐसा ना हो कि। लेस्ट मीन्स ऐसा ना हो कि, एंड सो दैट मीन्स ताकि। यहाँ देखिए सो दैट एक साथ दिया है, बट यहाँ क्या था, सो डॉट डॉट दैट, यानी बीच में कुछ और था उसके बाद दैट, बट यहाँ सो दैट एक साथ दिया है, इसका मतलब क्या होता है, ताकि। एंड इन ऑर्डर दैट मीन्स जिससे। ओके, अब एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगी, विद लेस्ट, लेस्ट के साथ यू शुड ऑलवेज यूज शुड। लेस्ट के साथ हमेशा और हमेशा क्या यूज होता है बच्चों, शुड। ओके, ये मैंने मॉडल्स वाले जो वीडियोस हैं उसमें भी मैंने यहाँ डिस्कस किया है, बट आई एम जस्ट डिस्कसिंग हियर ऑल्सो। लेस्ट के साथ हमेशा जो मॉडल यूज होता है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वो कौन सी होती है, शुड। एंड सो दैट एंड इन ऑर्डर के साथ ऑलवेज एंड ऑलवेज मे और माइट यूज होता है। ओके, मे एंड माइट, एंड इट इज डिपेंड ऑन सेंटेंस। अगर फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट में है तो मे यूज होगा, एंड अगर फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में है तो माइट यूज होगा। ओके, हम थोड़े से एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। लेट्स वॉक केयरफुली। ओके, वॉक केयरफुली, संभल कर चलो। लेस्ट, मैंने यहाँ लेस्ट यूज किया है, एंड इट इज इन द मिड ऑफ द सेंटेंस, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट। ओके, एंड ये यू शुड फेल डाउन, तुम गिर जाओगे। लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, संभल कर चलो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। ओके, संभल कर चलो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ओके, कठिन परिश्रम करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। एंड सो दैट को हमने कैसे यूज किया, ही वर्क्स वेरी हार्ड। यहाँ देखिए हमने क्या यूज किया, वर्क्स, एक प्रेजेंट टेंस। ही वर्क्स वेरी हार्ड सो दैट, ताकि, यहाँ हमने ही के साथ में यूज किया है क्योंकि यहाँ प्रेजेंट टेंस है, ही मे पास। ओके, ही वर्क्स वेरी हार्ड सो दैट ही मे पास। एंड in order that के लिए भी, he went to America, went from past tense, he went to America, कहाँ गया वो, अमेरिका। in order that, जिससे कि he might get higher education, वो हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके। ओके, जिससे कि उसे हायर एजुकेशन मिल सके। तो यहाँ मैंने in order that,
सो दैट और लेस्ट कहाँ यूज किए हैं? मिड ऑफ द सेंटेंस, इसलिए यहाँ कोई भी कॉमा यूज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सो these charts are from result and purpose. I made you understand. And one more is remain, manner. So students, this is from manner, और manner में two वर्ड्स हैं यहाँ, as and so far as. ओके, एंड दोनों का ही मतलब क्या है? जितना. What is the means of these words? जितना. ओके, यहाँ मैं एक सेंटेंस, यहाँ 2 sentences लिख रही हूँ मैं. There are 2 sentences. You have treated me in certain way. और दूसरा है I will treat you in the same way. तुमने मुझे निश्चित रूप से मुझे जैसे मुझे ट्रीटेड किया है, ओके, मैं भी तुम्हें उसी तरीके से ट्रीट करूंगी. ओके, अब मुझे ये कंबाइन करना है बाय यूजिंग वन ऑफ देम. तो मैंने एज को यूज करके कर रही हूँ. बाय यूजिंग एज मैं इसको कैसे कंबाइन कर सकती हूँ? इस पूरे सेंटेंस को मैंने एक छोटे से रूप में लिखा है. I will treat you as you have treated me. मैं तुम्हें वैसे ही ट्रीट करूंगी जितना कि तुमने मुझे किया था. ओके ओके स्टूडेंट्स, इन अ वेरी इजी वे इतना बड़ा सा सेंटेंस इस वे में लिख किया बाय यूजिंग एज. और एज क्या है? हमारा कंजंक्शन. ओके, यहाँ ये कंजंक्शन है. एंड आई बाय यूजिंग एज I join these 2 sentences. और ये 2 sentences में मैंने क्या जोड़ा है यहाँ पर? What I joined here? Clause. Okay students? So this is of purpose है, ये manner है. Here is manner. Okay? I told you about it. और with this subordinating conjunctions has been completed. So after it we will know about correlative conjunctions. Okay students, so students, these are correlative conjunctions. Okay, correlative conjunctions. और correlative conjunctions कौन से होते हैं? जो पेयर में यूज किए जाते हैं. ओके, correlative conjunctions are the conjunctions that always use in pair. Okay, यहाँ मैं एक चीज लिखूंगी बाद में, but we will discuss about it. और उसको कहाँ यूज किए जाते हैं? That we frequently use to connect 2 ideas together in a sentence. Okay, कहाँ यूज किए जाते हैं? जो 2 ideas है ना, 2 ideas एक सेंटेंस में डाले जाते हैं. 2 ideas जो भी 2 आइडियाज हैं उनको एक सेंटेंस में जोड़ा जाता है बाय यूजिंग सम पेयर्स. और वो पेयर्स क्या है? दीज आर कॉमन पेयर्स जो हम यूज करते हैं कॉमन वे में. बोथ के साथ क्या यूज करते हैं? ऑलवेज बोथ के साथ एंड. ओके, जिसका मतलब होता है दोनों और. बोथ के साथ क्या यूज किया जाता है? एंड. बोथ डॉट डॉट एंड. और इसका एग्जांपल है both English and Hindi are spoken in India. Both English and Hindi, दोनों English और हिंदी, दोनों English और हिंदी, दोनों मतलब यहाँ इसका मतलब यहाँ 2 हमारी जो लैंग्वेजेस हैं यहाँ उसके बारे में बात हो रही है. इंग्लिश और हिंदी are spoken in India. Okay, and next है whether or. whether dot dot or. इट मीन्स चाहे या. इसका मतलब क्या होता है? चाहे या. ओके, ही इज कंफ्यूज्ड अबाउट वेदर ही स्टे इन इंडिया और. ओके, यहां मैंने वेदर यूज किया और यहाँ 2 आइडियाज हैं. ही स्टे इन इंडिया, या तो वो इंडिया में रुके, और मूव टू कनाडा, कहां चला जाए? कनाडा. तो वो उसके लिए क्या है? कंफ्यूज्ड है. ही कंफ्यूज्ड अबाउट वेदर ही stay in India or move Canada. Okay, whether he stayed in India or moved to Canada. Okay students, here are 2 ideas और दोनों ideas को हमने किससे जोड़ा? whether और or से. And next है either or. either or means या तो या. Okay, either come in time or do not come at all. या तो समय पे आओ या बिल्कुल मत आओ. ओके,
यानी या तो समय पर आओ या बिल्कुल मत आओ. ओके, सो हियर आई यूज्ड ईदर एंड और. ओके, ईदर वर्क हार्ड और सिट एट होम. या तो कठिन परिश्रम करो या घर बैठो. ओके स्टूडेंट्स, लाइक दैट ईदर and one idea and or and second idea. And next is neither nor. जैसे affirmative में you know ये किस में यूज किया जाता है, either और affirmative, और negative में क्या यूज किया जाता है, neither nor. okay, means है simple ना तो ना. I like neither cake nor ice cream. मुझे केक भी पसंद नहीं है, आइसक्रीम भी पसंद नहीं है. ओके, I like neither cake. मुझे ना तो केक पसंद है ना ही आइसक्रीम. ओके, लाइक he did not come, he did not send any letter. हम इसको कंबाइन करेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, he neither came nor sent any letter. Okay students, and next is not only but also. न केवल बल्कि यह भी. He won not only trophy but also money. So here not only and then one thing, one noun and second money. वो उसने जीता न केवल ट्रॉफी बल्कि धन भी. ओके, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, she is not only intelligent but also beautiful. वो इंटेलिजेंट ही नहीं, सुंदर भी है. नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर कोरिलेटिव कंजंक्शन जो दो पेयर में यूज किए जाते हैं. और इसमें एक और रह गया, सो डॉट डॉट दैट, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ. इट मीन्स इतना कि. ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक. ओके, ये भी एक कोरिलेटिव कंजंक्शन ही है. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर यू. और मुझे लगता है कि अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली कंजंक्शंस को लेकर. ओके, यू नो एक प्रॉब्लम और है, अगर आपके सामने आ जाए कंजंक्शंस, यानी आपने जब पढ़ा सो सम कंजंक्शंस आर हियर जो कि प्रीपोजिशंस में भी यूज किए जाते हैं. ओके, थे ना कुछ कंजंक्शंस जिन्हें हम प्रीपोजिशन में भी यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आप कैसे पहचानोगे उन्हें, हाउ यू विल नो कि ये यहाँ कंजंक्शन है, ये यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, हाउ यू विल आइडेंटिफाई दैट. तो मैं ये बताती हूँ. preposition, conjunction. okay, you know first आपको मैंने definition भी बताई थी. sometimes you will confuse to see both the words in both side, कि preposition में भी है और conjunction में भी है, तो कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो. बट इट्स वेरी क्लियर कि जो preposition है ना, preposition वो क्या बताते हैं, रिलेशन. ओके, preposition शो रिलेशन. क्या बताते हैं, रिलेशन. जबकि कंजंक्शन जॉइन वर्ड्स, clauses एंड फ्रेजेस. ओके, जबकि जो कंजंक्शंस हैं वो क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, यानी जोड़ते हैं. किस किस को, वर्ड्स को, क्लॉजेस को और फ्रेजेस को. जबकि ये क्या करते हैं, preposition show relations with noun and rest part of the sentence. ओके, यहां मैं एक एग्जांपल देती हूं आपको.
देन यू विल नो कि यहाँ कहाँ पर किस तरीके से रिलेशन बनाएंगे और किस तरीके से यहाँ ज्वाइन करेंगे. ओके, एक वर्ड कॉमन ले लेते हैं हम, until. सॉरी, हम ले लेते हैं until ही ले, until. ओके, until यहाँ preposition भी है और until conjunction भी है. अब मैं यहाँ एक एग्जांपल देख रही हूँ preposition में भी. He will have to wait until Monday. ओके स्टूडेंट्स, और यही मैं यहां पर लेती हूं, he will have to wait until she arrives. ओके, सो इन दैट वर्ड यहां पर until के बाद क्या लगा है, मंडे. ओके, यहाँ मंडे है, इट मीन्स ये हमारा जो नाउन है, या एक चीज समझ लीजिए. ओके, प्रेपोजिशन में कौन कौन सी चीजों को कौन कौन सी चीजों का रिलेशन बताते हैं, टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, ये 3 थिंग्स ही तो है जहां आप टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन का रिलेशन रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस से बताते हैं. तो यहाँ मंडे क्या है, टाइम, और उसका जो रिलेशन कौन बता रहा है, until. किससे, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, he will have to wait. क्या है हमारा रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, he will have to wait. और यहाँ until क्या है, preposition, और यहाँ मंडे क्या है, टाइम. ओके, एंड लुक हियर, यहाँ भी सेम सेंटेंस है, he will have to wait until. हमने यहां पर भी until यूज किया है. ओके, until she arrives. यहां मैंने ये क्या है, she arrive क्या है, एक क्लॉज. he will have to wait भी एक क्लॉज. ओके स्टूडेंट्स, तो यहां 2 क्लॉज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, until. ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर ये क्या है, कंजंक्शन, यानी यहाँ ज्वाइन वर्ड्स, क्लॉज एंड फ्रेज. जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ड, क्लॉज एंड फ्रेज, तो ये क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है until. सो दैट्स वाई हियर इट्स वर्क लाइक क्लॉज, कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है, और यहाँ पर प्रेपोजिशन. ओके, यहाँ एक और सेंटेंस में लिखती हूँ, आफ्टर ले लेते हैं, आफ्टर दोनों में ही था. he went आफ्टर मी. ओके, और यहां पर भी मैं आफ्टर दे फिनिश्ड द मीटिंग he returned to home. ओके, यहां देख, लुक, he went to after me. he went after me. वह गया किसके बाद, मेरे बाद. यहाँ प्रोनाउन है जो यहाँ पर जोड़ने के रिलेशन, मी का रिलेशन किसके बाद किससे बता रहा है, लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सो आफ्टर इज वर्किंग हियर प्रेपोजिशन. किसका काम कर रहा है यहाँ, प्रेपोजिशन का. बट लुक, यहाँ मैंने आफ्टर पहले यूज किया. ओके, आफ्टर दे फिनिश द मीटिंग, और यहाँ क्या यूज किया, कोमा, क्योंकि मैंने यहाँ पहले ही आफ्टर यूज किया. ओके, सो आफ्टर दे फिनिश द मीटिंग एंड देन ही रिटर्न टू होम. ओके, यहाँ 2 क्या है, क्लॉज, ये दोनों क्या है, क्लॉज. ओके स्टूडेंट्स, और वो ये कौन सा क्लॉज है, दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज. ओके, so that's why here after is working as conjunction.
ओके अब मुझे लगता है कि आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कंजंक्शंस कहाँ पर है और प्रेपोजिशन यानी जो सेम वर्ड्स हैं वो कंजंक्शन का कैसे कंजंक्शन के फॉर्म में कैसे यूज होते हैं और प्रेपोजिशन की फॉर्म में कैसे यूज होते हैं. इट्स वेरी इजी and I made you understand. I tried my best to make you understand. Okay, students. So you have to do practice for conjunctions and watch these videos. All the videos are related to conjunctions. Okay. Next, our next video will be can be related to that topic. मैं कुछ और भी टॉपिक लूंगी जो कि कंजंक्शन से ही रिलेटेड होंगे. यू नो वन बाय वन. कभी कभी कैसा होता है ना, कंफ्यूजन होता है आप लोगों को कि कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, जब सेम वर्ड्स यू नो वर्ड्स के डिफरेंट वर्ड्स के सेम ही मीनिंग हो. सो इन माय नेक्स्ट वीडियोस आई मेड यू अंडरस्टैंड अबाउट देम. ओके, टिल देन बेस्ट ऑफ लक.